Hello students, welcome to your geography class for lesson number 4, that is exogenetic processes part 2. Students, exogenetic processes is not a new concept to you all. As in the previous lesson we have learned about the exogenetic processes, that processes which occur on the surface of the earth naturally by different phenomena, that is what known as exogenetic processes. In part 1, we have learned about different types of exogenetic processes which are caused by weathering. It includes mechanical weathering, chemical weathering, and even biological weathering. In the last of the lesson, we have learned about erosion, that erosion is also the cause of exogenetic processes. Students, in today's video, we are going to learn about this erosion and the erosional work of different types of agents which leads to this erosional work, and finally the outcome is exogenetic processes. So let's begin with our lesson exogenetic processes part 2 with the first topic, that is erosion. Students, what is erosion? Erosion means what? In simple words, you can say that the natural processes by which rock and soil from one location on the earth's surface is moved to another location is known as erosion. Natural processes बहुत सारे हो सकते हैं. It may be due to air, due to water, due to glacier, due to waves, etc. So there are 4 agents of erosion, but that is what here mentioned. That is what erosional work by running water with the help of glaciers, winds, groundwater, and apart from that we are having sea waves also. These are the basic agents of erosion which leads to erosion. In this lesson, students, we are going to learn one by one about all these agents of erosion, that how these erosional works leads to exogenetic processes. So the first one is work of rivers and landforms. What is river, students? River यानी क्या? A river is a large stream of fresh flowing water, usually emptying into the sea. High in the hills or mountains, small stream gather to form a river. It flows in a channel. Mostly कैसा होता है, हाई हिल्स माउंटेन जो होते हैं वहाँ से रिवर्स का जो है वो ओरिजिनेशन होता है, एंड इट एंड्स इन द सी एंड द ओशियंस. एंड व्हाट इज़ रिवर एक्चुअली? फ्रेश वाटर जो फ्लो होता है तो उसका एक पूरा लार्ज स्ट्रीम जो फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ व्हाट नोन एज रिवर. Running water flows naturally in the direction according to the gravity along the slope and make its own way. Normally we know that gravitational force pulls the things towards itself, and that's why running water also flows naturally towards the direction of gravity. That means it makes its own way to the slope areas. This is called a flow of water. उसे क्या कहते हैं हम? Flow of water. When many such flows of water come together, a river is formed. बहुत सारे ऐसे flow of water जब जमा एक जगह जो है वो form मिलते हैं, when they meet together, so it leads to the formation of rivers. The slope of the land and the type of the rock, volume of the water flowing in the river, and the length of flow, volume of the sediments in the river, etc. are the factors which the erosional, transportational and depositional work of the river depends. See, these are different factors. First of all, land का slope जो है वो कैसा है, rock की type कैसी है, we know that different types of rocks are there. Volume of water flowing in the river, कुछ rivers जो होती है वो कैसी होती है, I told you earlier that some are perennial rivers, some are seasonal rivers. Seasonal rivers which flow in season only, that means in rainy season they will only flow when they get excessive water, and in rest of the year they will just get soaked. क्या हो जाती है? पूरी dry हो जाती है. Some rivers are perennial river, the rivers which flow for whole of the year. That means the water is not getting dried up. उसका पानी जो है सूखता नहीं है, पूरे साल भर उसका फ्लो रहता है.
सो इट डिपेंड्स कि उसका वॉल्यूम कितना है, कितना पानी उसके अंदर एक्चुअली अवेलेबल है. इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ मोर देन इट विल बी पेरेनियल वन. वो कैसी होगी फिर? पेरेनियल होगी और उसका फ्लो बहुत फास्ट होता है. तो कुछ जो हिमालयन रेंजेस की रिवर है वो मोस्टली क्या है? पेरेनियल रिवर्स है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है. लेंथ ऑफ द फ्लो, कितनी बड़ी रिवर है, फ्रॉम द हाइट माउंटेनियस हाइट फ्रॉम वेयर इट इज़ एक्चुअली ओरिजिनेटेड एंड वेयर इट एक्चुअली गेट्स एन एंड, गोइंग टू एन एंड, इट इज़ व्हाट? द लेंथ ऑफ द फ्लो. वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट इन द रिवर, वी नो दैट व्हेन वाटर फ्लोज इट ब्रिंग्स सेडिमेंट्स अलॉन्ग विथ इट. कितना सेडिमेंट जो है वो अपने साथ लेकर आती है. जितना फ्लो ज़्यादा रहेगा, जितनी लॉन्ग रिवर रहेगी, उसके हिसाब से उसका क्या रहेगा? सेडिमेंट का कलेक्शन भी ज़्यादा रहेगा. सो दीज आर सम फैक्टर्स विच लीड्स टू द इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल वर्क. इरोजन दैट मीन्स, मैंने आपको बताया, द वियरिंग अवे ऑफ द सॉइल और द रॉक इज नोन एज इरोजनल वर्क बाय नेचुरल फिनोमिना, दैट मीन्स बाय फ्लोइंग ऑफ द वाटर. ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मैंने बताया अभी आपको, डिपोजिशन जो होता है, जब अपने साथ सेडिमेंट बहुत सारे फ्लो करके लेकर आती है, तो बहुत सारा मड, स्टोन्स, पेबल्स और सैंड, ये सब क्या होता है? दे जस्ट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज़ व्हाट? ट्रांसपोर्टेशनल वर्क. डिपोजिशनल वर्क दैट मीन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे जस्ट गेट कलेक्टेड एट वन प्लेस. एक जगह पर आकर क्या होता है? उसका फ्लो जहाँ पर डाउन होगा या कम होगा, तो वहाँ पर अगर क्या होता है, पूरा वो सेडिमेंट जो है वो जमा होने लग जाते हैं. दैट इज़ व्हाट? डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर्स. तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. ऑन दीज फैक्टर्स दिस इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर एक्चुअली डिपेंड्स. एंड दिस इरोजनल वर्क ऑफ रिवर it leads to different types of landforms. See, the river originate at a much higher altitude from the sea level. We know that mostly rivers are originated from high mountainous areas. That means sea level से उसका altitude क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है. Here the river flows at a great speed and therefore its power to erode is great. Higher the speed, the erosion will be more, right? The river bed and the river bank get eroded because of the fast flow of water, sand particles, pebbles, etc. Mostly what's happen? River bed, that means वो river का जो lower part जो होता है वो, और river bank that means वो side होता है river का, दोनों किनारे जो होते हैं river के, उसे कहते हैं river bank. इन दोनों का क्या होता है? मोस्टली इरोजन होता है. As when water flows with a higher speed, it takes various sediments along with it and ultimately erosion took place. So when it flows with a higher speed, water when it flows with a higher speed, it takes sand particles, pebbles along with it, and the various tributaries joining the main river, all these lead to the formation of gorges, that is canyons, waterfall, V-shaped valleys, etc. See, these are the waterfall, you know na, the when water is falling from a very high mountain with a greater speed, it is known as, एकदम जो वर्टिकल जो वैलीज या माउंटेन होता है, वहाँ से पूरा जो है वो डायरेक्टली नीचे वाटर गिरता है, उसे क्या कहते हैं? वाटरफॉल कहते हैं. वी शेप्ड वैली, एज यू नो दैट, वर्ड से आपको स्पेसिफाइड हो रहा होगा, दो माउंटेन्स जो होते हैं उनके बीच की जो वैली का पार्ट होता है वो कैसा होता है? इट इज़ फॉर्म जस्ट लाइक अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी. देखिए आपको पिक में नज़र भी आ रहा होगा. एंड गॉर्जेस एंड कैनियंस जो होते हैं कैसे होते हैं? माउंटेन्स जो होते हैं उनके बीच का जो पार्ट होता है वैलीज़ का, बट इट इज़ एक्चुअली वर्टिकल, बहुत नैरो पार्ट होता है, और वर्टिकल जो है वो क्या होती है? माउंटेन्स होते हैं, उनके बीच का जो पार्ट होता है बहुत ही नैरो वाला, उसे क्या कहते हैं? कैनियन और गॉर्जेस. सो मोस्टली क्या होता है? इरोजनल वर्क की वजह से when water flows with a greater speed, it leads to this type of formations. Now the next topic, transportation and deposition by rivers. See, we know that a river flows down the slope from a hilly region. हिल से क्या होती है? वो फ्लो होकर नीचे की तरफ आती है. At the foothills that means the lower part of the mountain, the changes in the slope causes deposition ऑफ द कोर सेडिमेंट. तो क्या होता है? जब वो फ्लो से ऊपर से जो हाइट से नीचे की तरफ आती है, तो माउंटेन का जो फुटहिल होता है, दैट मीन्स वेयर द माउंटेन इज एक्चुअली, जहाँ से स्टार्ट होता है नीचे का पार्ट जो होता है माउंटेन का, लैंड से जहाँ से कनेक्टेड होता है, उसे कहते हैं फुटहिल. तो वहाँ पर क्या होता है? पूरा जो है वो स्लोप, वहाँ पर पूरा डिपोजिशन जमा हो जाता है सेडिमेंट्स का. एज दीज आर डिपॉजिटेड इन अ ट्राइंगुलर शेप. जब फ्लो से वाटर आकर नीचे आता है, तो आप देखे होंगे रिवर का जो नैरो पार्ट होता है, उससे जहाँ पर वो फुटिल की तरफ आएगा तो वो वाटर क्या होता है? पूरा एक्सपांड होता है विद द फ्लो.
तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप फॉर्म हो जाता है एंड दे फॉर्म एन एलिवियल फैन। और वो जो आपको एक पूरा लैंडफॉर्म नज़र आएगा वो कैसा होता है, इट लुक्स लाइक अ फैन देखा होगा ना आपने, उसकी जैसे जो एक ट्रायंगुलर शेप बन जाता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, एलुवियल फैन कहते हैं। As the steepness of the slope decreases and the transportation capacity of the river reduces, it starts flowing slowly. जितना स्टीप कम रहेगा और स्लोप कम होती जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, उसकी रिवर की ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी जो होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, रिड्यूस्ड होती है, और उसका फ्लो क्या हो जाता है, फिर स्लो हो जाता है। इट बेंड्स एंड मिएंडर्स, बेंड्स यानी कि मिएंडर होना दैट मीन्स इट गेट बेंड, क्योंकि उसका फ्लो कम हो गया है और जैसे उसको फ्लो मिलता है तो वहाँ पर क्या होती है, वो बहुत बेंड हो जाती है, बेंड मीन्स मिएंडर्स हो जाती हैं। एंड ऑफन इन इट्स वे इन एन एफर्ट ऑफ क्रॉस इवन स्मॉल ऑब्स्टेकल, और इसमें क्या होता है, बारीक छोटे छोटे ऑब्स्टेकल भी क्या करती है, वो क्रॉस करती भी जाती है। एंड फाइनली इट रीचेज द सी। इट्स रिवर बेड बिकम वेरी वाइड, उसका रिवर बेड जो है बहुत वाइड हो जाता है। एंड इट स्पीड बिकम वेरी स्लो, और उसकी स्पीड कैसी होती है, रिवर की बहुत ही स्लो हो जाती है। एंड द सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर गेट डिपॉजिटेड इन इट्स बेड एंड ऑन इट्स बैंक। तो जितना भी वो सेडिमेंट अपने साथ कैरी करके लाती है, एज इट स्पीड गेट लोअर, उसकी क्या जो स्टीपनेस है, जो ढलान है वो क्या हो गई है, रिवर की बहुत कम हो गई है, तो उसकी स्पीड भी कम हो जाती है वाटर के फ्लो होने की। और इस वजह से क्या होता है कि जो रिवर का साइड होता है, किनारा होता है, वहाँ पर और रिवर का जो सी बेड है उस पर क्या होता है, सेडिमेंट्स जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज द स्पीड ऑफ द रिवर गेट रिड्यूस्ड। And the factors that determine the deposition of the sediments are the length of the river, volume of the water, amount of the sediments, and the slope of the river and the earth surface. That landform like flood levees, flood plains and deltas are formed because of the deposition of the sediments. See students, this is what meandering rivers, curve जो फॉर्म हो जाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, meandering कहते हैं, दैट मीन्स बेंडिंग ऑफ द रिवर। तो ये एक रिवर चैनल है, इससे भी क्या होता है, रिवर का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है और सेडिमेंट जो है वो रिवर बैंक और रिवर बेड जो है वहाँ पर क्या आने लग जाते हैं, डिपॉजिट होने लग जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो रिवर का डिपोजिशनल वर्क होता है, इसकी वजह से क्या होते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो है क्रिएट होते हैं। सी फ्लड लेवीज इसे कहते हैं। ये बीच में मिडल वाला जो आपको रिवर पार्ट दिख रहा होगा, देखो मैंने एरो से आपको बताया भी है, मिडल में जो है रिवर का फ्लो है, रिवर फ्लो के दोनों साइड में जो सेडिमेंट्स जमा होते हैं उसे कहते हैं फ्लड लेवीज। वाटर का जब लेवल हाई हो जाता है और वाटर जब ये फ्लो के साथ जो सेडिमेंट्स वगैरह जब कलेक्ट होकर आते हैं तो क्या फॉर्म होते हैं, रिवर बैंक पर फ्लड लेवीज फॉर्म होते हैं। और जो दूर का थोड़ा फार अवे प्लेसेस जो होते हैं, जो रिवर के साइड में दूर के प्लेन्स होते हैं, वहाँ पर जो सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं, जमा होते हैं, तो उनके से क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स फॉर्म होते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स विच इज़ क्रिएटेड बाय दीज flowing of the transportation or the depositional work of the rivers. So even we can find that various deltas also form. जब वो रिवर जो है वो सी में आकर मीट होने लगती है तो क्या होता है, वहाँ पर डेल्टाज जो है वो भी क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। सो दीज आर व्हाट द ट्रांसपोर्टेशनल एंड डिपोजिशन बाय रिवर्स। Even students, you can see that there are different types of actually रिवर जो है उसके फॉर्म होने तक का वो अलग अलग प्रोसेसेस यानी कि अलग अलग चैनल से पास होती है और हर चैनल पे उसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, रिल, गली, स्ट्रीम, रिवर। व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑल दीज? सी व्हेन वाटर जस्ट गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द माउंटेन, नॉट विद अ वेरी फ्लो, रॉक्स और माउंटेन के बीच में से थोड़ा बहुत जो पानी जो है वो यहाँ वहाँ से जो हाइट से छोटी छोटी हाइट से जो गिरता है यहाँ वहाँ से बहकर, उसे क्या कहते हैं, रिल्स। थोड़ा थोड़ा सेपरेटेड पार्ट से हम देखते हैं, मोस्टली रेनी सीजन में माउंटेन पर हमको ऐसे रिल्स नज़र आते हैं। रिल्स के जमा होने से, मतलब 2-3 रिल्स के मिलने से क्या होता है, वाटर का फ्लो बढ़ जाता है और फिर क्या होता है, इस तरह का जो है वो गली फॉर्म होती है। व्हेन दिस गली, बहुत सारी गली जो है वो जब एक साथ यूनाइट होती है, जब मिलती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर को एक बहुत फास्ट फ्लो मिलता है, तो उसके फॉर्म होने से क्या होता है, स्ट्रीम्स फॉर्म होती है एंड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन टुवर्ड्स दी स्लोपरी एरियाज। तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। बट स्ट्रीम इज़ नॉट वेरी बहुत वाइड नहीं होती है, छोटी छोटी सी होती है ये। एंड
many streams when they come together it forms a river. उसकी वजह से क्या होते हैं, फिर rivers form होते हैं. So you must understand it. रिल, गली, स्ट्रीम एंड रिवर्स, दीज आर व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द. हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो रिवर के फॉर्म होने से पहले के जो है क्या है, छोटे छोटे उसके बहुत बेसिक अलग अलग फॉर्म्स हैं. ओके, नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वर्क ऑफ द ग्लेशियर्स एंड लैंडफॉर्म्स. हमने पहला जो है वो इरोजन देखा विद द हेल्प ऑफ द रिवर, नाउ द सेकेंड वन विद द हेल्प ऑफ ग्लेशियर्स. सो what is glacier and how it affects? In region where the temperature are generally below freezing point, precipitation is in the form of the snowfall. मोस्टली जहाँ पर जो है ऐसे प्लेसेस जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो होता है, वहाँ पर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन कैसा होता है, स्नोफॉल. हमारे यहाँ पर नॉर्मली जहाँ पर हमारे यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो ये टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन. प्रेसिपिटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ coming of the rainwater in the form of different coming of the water droplets in different forms. Maybe हो सकता है वो रेन के फॉर्म में आए, स्नो के फॉर्म में आए, हेलस्टोन के फॉर्म में आए. तो जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे, वहाँ पर जो है क्या होता है, स्नोफॉल होती है. और ये जो लेयर होती है स्नोफॉल की, एक जगह क्या होती है, एक्यूमुलेट होती जाती है सरफेस पर, एंड इट इज़ जस्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लेशियर्स. The heavy weight of these overlying layer makes the snow move along the slope. जब ये heavy weight glacier जो है वो स्नो जमा हो जाती है, तो इसका वेट जब बहुत बढ़ जाता है और स्लोप की तरफ क्या होती है, फिर वो जो है वो नीचे की तरफ आने लग जाते हैं. At the base of the layer the snow starts melting. और जो बेस होता है लेयर का, वहाँ पर क्या होता है, स्नो मेल्ट होना स्टार्ट करती है. एंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड द प्रेशर फ्रॉम अबव ग्लेशियर स्टार्ट मूविंग स्लोली अलॉन्ग द स्लोप. क्योंकि ऊपर की तरफ से क्या होगा, उसको जो है वो प्रेशर मिलता है, तो हाइट की तरफ से जब उसको प्रेशर रिसीव होता है, फ्रिक्शन मिलता है, तो फिर क्या होता है, वो स्लोप की तरफ जो है वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है. लाइक द रिवर्स ग्लेशियर्स टू कैरीज आउट द वर्क ऑफ इरोजन. जैसे रिवर जो है अपने साथ बहुत सारे डिपोजिशन या सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, वैसे ही जब ग्लेशियर्स जो है वो हाई माउंटेन की तरफ से स्लोप की तरफ आते हैं, so they also work as a form of erosion. वो भी क्या करते हैं, इरोजन का काम करते हैं. एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन also leads through these glaciers. So erosion by the glacier. अब इरोजन कैसे होता है और कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं. See we know that though its velocity is less, velocity that means कि इसकी स्पीड, वाटर का जो फ्लो होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इन कंपेयर टू दैट ग्लेशियर की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है. The mass of the ice is more and hence the glacier eroded its own bank and its bed on a large scale. जो आइस का मास होता है, यानी कि वो जो बड़े बड़े बहुत ग्लेशियर क्या है, एक बहुत बड़ा बड़ा जो है वो आइस का पार्टिकल्स होते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े जो है वो उसके पार्ट्स होते हैं. तो ये जो मास होता है आइस का बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्लेशियर क्या करते हैं, रिवर बैंक और रिवर बेड जो होता है खुद उसी को क्या करते हैं, इरोड करते हैं. द इरोजन वर्क ऑफ द ग्लेशियर प्रोड्यूसेस लैंडफॉर्म लाइक. अब ये जो इरोजन होता है तो उसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि सर्क्स, एरिट्स, हॉर्न्स, वी शेप्ड वैलीज, हैंगिंग वैलीज एंड रॉकी माउंटेनीज. दीज आर दी और द शिप बैक्स. ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स जो क्रिएट होते हैं ड्यू टू द इरोजनल वर्क ऑफ द ग्लेशियर्स. सी हियर यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. हॉर्न जो है वो पीक जैसे जो फॉर्म हो जाता है उसे कहते हैं हॉर्न. सर्क जो है क्या होता है, नॉर्मली ग्लेशियर जब स्लोप पर आते हैं तो उसकी वजह से जो है वो एक थोड़ा सा हम ऐसे कहते हैं ना, एक कर्व जैसा फॉर्म हो जाता है, जैसे कि आपको जैसे होता है एक स्लोपरी चेयर जैसी नज़र आएगी, तो उस टाइप का जो एक डीप पोर्शन फॉर्म हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं. दो सर्क के बीच में जो है एक ऐसा पॉइंटेड वो फॉर्म हो जाती है, पूरी एक लाइन जैसा फॉर्म हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, एरिट्स कहते हैं. हैंगिंग वैलीज जो है नॉर्मली क्या होती है, बड़ी बड़ी जो ग्लेशियर्स जो फ्लो होते हैं तो उनके फ्लो होने की वजह से छोटी मोटी जो है वो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स जो है वो क्या होते हैं, वो भी जाकर उनमें मीट करते हैं. उसकी वजह से जो है क्या होता है, इरोजन होता है ग्लेशियर्स के, ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स के फ्लो होने की वजह से. तो इस तरह का जो है वो एक बहुत बड़ा सा जो है वर्टिकली जो है वो क्या होता है, एक स्लोप फॉर्म हो जाता है, उसे कहते हैं हैंगिंग वैलीज.
रॉकी माउंटेनीज जो होते हैं वो कैसा होता है, मोस्टली स्लोप की तरफ जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो ये ग्लेशियर्स वगैरह जो है पूरे आइस और ग्लेशियर्स के एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड में जब आते हैं तो वो क्या होता है, एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं, तो उनका जो क्या होता है अप स्लोप और डाउन स्लोप, दो अलग अलग स्लोप जो है फॉर्म हो जाते हैं। डाउन स्लोप जो होते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो स्टीप होता है और इस टाइप का कुछ एक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, उसे कहते हैं रॉकी माउंटेनीज। और यू शेप्ड वैली जो है, दिस इज़ व्हाट जस्ट सिमिलर टू वी शेप्ड वैली। वी शेप वैली में एक्चुअली वी जैसा शेप फॉर्म होता है एंड यू शेप वैली जो होती है नॉर्मली इट इज़ जस्ट लाइक ए कर्व, लेकिन दो माउंटेन के बीच में जो है वो एक बड़ा सा जो है यू जैसा कर्व फॉर्म हो जाता है, उसे कहते हैं यू शेप्ड वैलीज। सो दीज आर दी इरोजनल वर्क्स बाय ग्लेशियर्स। इवन द ग्लेशियर्स कैरी सेडिमेंट्स विद देम, अपने साथ बहुत सारा जो है वो सेडिमेंट्स लेकर आते हैं एंड दीज सेडिमेंट्स आर कॉल्ड मोराइंस। उन्हें क्या कहते हैं, इन सेडिमेंट्स को कहते हैं मोराइंस। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द डिपॉजिट्स, यानी कि वो मोराइंस यानी डिपॉजिशन जो है वो कहाँ पर आकर जो है वो उनका लोकेशन क्या है, कहाँ पर आकर वो जमा हो रहे हैं। मोराइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। उसके भी 4 टाइप है मोराइंस के, कि वो उनका कलेक्शन कहाँ पर होता है, उनका जो है वो डिपॉजिशन कहाँ पर होता है ये सारे सेडिमेंट्स का। सो द फर्स्ट वन इज़ ग्राउंड मोराइंस, लेटरल मोराइंस, मीडियल मोराइंस एंड टर्मिनल मोराइंस। ये क्या है, अलग अलग टाइप के मोराइंस है। मोराइंस मीन्स कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स एट वन प्लेस, जो जाकर एक जगह पर जमा होते हैं, डिपॉजिट होते हैं सेडिमेंट्स, उन्हें क्या कहते हैं, मोराइंस कहते हैं। सो दीज आर क्लासिफाइड इनटू 4: ग्राउंड मोराइंस, लेटरल मोराइंस, मीडियल मोराइंस एंड टर्मिनल मोराइंस। Even the depositional work of the glacier produced landform like drumlins and eskers. See, these are drumlins and eskers. आपको समझ में आ रहा होगा, ड्रमलिन्स जो होते हैं वो हम ऐसे छोटी छोटी हाई पीक्स होती है ना, उस टाइप के एक लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द ग्लेशियर्स। सेडिमेंट्स जो है वो आके कलेक्ट होते हैं तो कुछ इस तरह का शेप बन जाता है ड्रमलिन्स जैसा, और एस्कर्स जो छोटी छोटी सी टेकरी जैसे फॉर्म हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो these glaciers when they deposited sediments they leads to the formation of eskers and drumlins. So students, here we completed the erosion through glaciers also. In the coming lecture we will start with the erosional work by wind. I hope so that these two types or these two agents of erosion are clear to you all. Thank you students.